اور وہ اپنے لکھا ہے تخت پر سے اٹھا, شاہی لباس کو اتار ڈالا, ٹاٹ اٹھ کر راہ پر بیٹھ گیا. کلام مقدس کا پڑھا, سمجھا اور قبول کیا جانا, اور اس کے سبب سے میری اور آپ کی خدائیں معاف ہوں. آمین, ہلیلویہ. بائبل میں لکھا ہے, خداوند کا کلام یونا پر لکھا ہے دوسری بار جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. ایک دفعہ بھی خدا نے کلام کیا اور یونا نے اس بات کو اپنے لائف کے اندر نہیں لیا. اگر بائبل مقدس کا مطالعہ کرے تو بائبل کے اندر ایوب مقدس کی کتاب, اس کے اندر لکھا خدا ایک بار نہیں بلکہ خدا 2 بار بولتا ہے. خدا کتنی بار بولتا ہے؟ 2 بار. خواہ انسان اس کا خیال کرے یا نہ کرے, لیکن بائبل میں لکھا ہے خداوند پاک خدا نے حضرت یونا کے ساتھ کتنی بار کلام کیا؟ انگلیاں اٹھاؤ. کتنی بار کیا؟ 2 بار. انگلیاں اٹھاؤ, اینج کرو. ہاں, کتنی بار؟ 2 بار کلام کیا. جب کلام کیا تو بائبل میں لکھا پہلی بار جب خدا نے کلام کیا تو یونا کلام سے منحرف ہو گیا, کلام سے باغی ہو گیا. کلام کو سن تو لیا لیکن اس کو عمل میں نہیں لایا. لیکن بائبل کہتی ہے, اور خدا نے جب یہ ساری باتیں کرنی تھی اور خدا نے یونا کے ساتھ جب کلام کے کہا اٹھ اور اس بڑے شہر نانوا کو جا, اور اس کے خلاف منادی, کسی کے خلاف منادی کرنا بڑی مشکل بات ہوتی. ہلیلویہ. اور وہ بھی سچی بات کسی کو بیان کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن آئیے پیشن کے ہم سیکھیں, نینوا جو تھا یہ 40 کلومیٹر پر مشتمل تھا. یہ جو شہر جو تھا, یہ جو گاؤں جو تھا, یہ جو قصبہ جو تھا, یہ 40 کلومیٹر پر مشتمل تھا. یہ آج کل عراق کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد اور وہاں کے جو لوگ جو تھے بڑے شرارتی لوگ تھے, بڑی بدخوئی کرنے والے لوگ تھے, بڑے ایسا ہے گھٹیا قسم کے لوگ تھے. اور تاریخ بتاتی ہے بے ایمان تھے, اور پھر تاریخ بتاتی ہے احساس مند لکھا ہے کہ نہیں تھے بلکہ شرارتیں کرتے تھے, بلکہ ہر وقت خدا کے کلام کی حکم عدولی کرتے تھے, کلام کو نہیں مانتے تھے. اور یہ مچھلی کے دیوتا کی ورشپ کرتے تھے. ہم جب 5ویں میں پڑھتے تھے نا تو ہماری ایک کہانی تھی ڈالفن فش کی. پڑھی ہے کس نے؟ پڑھی ہوگی. اور ڈالفن مچھلی نہیں ہوتی, بڑی ساری ڈالفن ہی کہتے ہیں نا, ایک پولیس بھی ڈالفن ہوتی. لیکن لکھا ہے لیکن وہ جو تھے, توجہ فرمانا, اور وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو مچھلی جو تھی ڈالفن اس کا نام ہے, اور یہ اسی دیوتا کی پرستش کرتے تھے. اور یہ مچھلی کے دیوتا, ان کا دیوتا جو تھا یہ مچھلی کی طرح تھا, اور ان کا رب جو تھا ان کی صورت مچھلی کے دیوتا کی تھی. اسی طرح ایسا تک جاننے تھے, اسی طرح اس کے پر تھے, اسی طرح اس کی آنکھیں تھی. لیکن بائبل کہتی ہے, اور بائبل میں لکھا ہے, لیکن یہ جو لوگ تھے یہ خدا کو نہیں مانتے تھے, یہ کلام کو نہیں مانتے تھے. لیکن یونا کے ساتھ جب خدا نے کلام کیا تو تاریخ بتاتی ہے, اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب خدا نے ایک دفعہ کلام تو پیش کر ہم یہ پڑھے, ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں سیکھیں. یونا کو عبرانی میں اس کا مطلب ہوتا فاختہ. فاختہ پلان کن آندے, کوئی بتا سکتا؟ پتا اور کو گینو پجا کٹ کرے گڑ 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 کرتی ہے نا صبح. اچھا چھوٹے چھوٹے اچانے دیکھو بھائی پرستش کر رہی ہے, ویسے تو کرتی تو پرستش کرتی ہے نا, کوئی کر کے دکھائے گا کیسے کرتی تھی؟ وہ سارا کچھ میں ہی کرنا. ہلیلویہ. کبوتری کو کہتے ہیں یا کگینو صحیح ادھا لفظ سے جڑا نا وہ ہے فاختہ. عبرانی کے اندر یونا کو کہتے ہیں فاختہ. اس کا مطلب فاختہ, اڑنے والی, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والی. اس کو ادھر بھیجا یہ ادھر جاتا, ایسا ہے یا نہ؟ لیکن پھر اس کے بعد سنی گا, اب نینوا جو تھا یہ قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے. اس کے بانی جو تھا وہ حضرت نوح کا لکھا ہے پوتا جو تھا نمرود بادشاہ جو تھا, اور یہ جس سے موسیٰ کی مخالفت کی تھی یہ اس ملک کا بادشاہ تھا, اس ملک کا بانی تھا. اور یہ شہر جو تھا یہ زیادہ تر ایسا ہے کوستانی تھا, یعنی ایسا تھا
पानी था और इसकी राह जो थी 36 घंटे की थी। कितनी थी? एक शख्स चलता है ना, एक शख्स कंटिन्यू चलता है, तो अगर वो चलता है तो 36 घंटों के अंदर उसका चक्कर जो है वो मुकम्मल करता है। ये 99 की तारीख है। लेकिन ये 612 काफ मीम, तवज्जो फरमाना, ये 612 काफ मीम, यानी ये यीशु मसीह से 612 साल पहले, यानी काफ मीम का मतलब होता है, ये शॉर्टकट है कि कबल अस मसीह द पीपल ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह से पहले, यानी ऐसा है कि कबल अस मसीह काफ मीम, जहां आपके पास को खादिम आए वो कहे काफ मीम, आप समझेंगे यीशु मसीह से पहले की बात कर रहा है। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है जब यूना ने ये सारी बातें सुनी, सुनने के बावजूद इसने मैसेज को लिया। आज भी लोग मैसेज को लेते हैं, अपने ऐसा दिलों में नहीं ऐसा बसने देते, दिल के अंदर से निकाल देते हैं, जगह नहीं बनाते। और यूना ने सेम ऐसा किया, उस मैसेज को सुना, दोनों कानों से सुना। खुदा ने कहा मशरिक को जाना है तो ये मगरब को जाता है, खुदा ने कहा शुमाल को जाना है ये जनूब को जाता है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान का नहीं, इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। उनको इधर का है वो उधर को जाते हैं, इधर का है इधर को जाते हैं। लेकिन यूना ने सेम ऐसा ही किया मेरे शीशा। और खुदा ने कहा तूने नैनवा को जाना, इसने पैसे लिए, टिकट लिए, टिकट लेने पर बैठा और बैठने के बाद इसने क्या किया? ये सो गया। ये क्या किया? सो गया। सोने के बाद ऐसा है, टिकट लेने के बाद ये तरसीस को गया। कहां गया? बोलो तो सही, ऊंची बोला करो। हाँ जी, हाँ जी, कौन से शहर को गया? लिखा है तरसीस को गया। तरसीस को जब जाता है तो वहां बाइबल में लिखा है वहां एक जहाज के अंदर सवार हो जाता, बड़े आराम से सोया हुआ है। जब सोया हुआ, अब ऐसे वापस दफा खुदा आपको बचाने के लिए, शहरों को बचाने के लिए, कबीलों को बचाने के लिए आपकी लाइफ के अंदर तूफान भी बर्पा करता है, लेकिन आप उसे पिक नहीं करते। मैंने एक लफ्ज बोला था, जितना लेट होगा उतना ग्रेट होगा। हालेलुया। जितनी लेट आपकी बरकत होगी उतनी ग्रेट होगी। हालेलुया। फिर लोग सड़ेंगे, जब आपको मुंह नहीं ना लगाते फिर वो इंतजार करेंगे, दीदार करेंगे, आपका इंतजार करेंगे और आपको देखेंगे। और बाइबल क्या कहती है? और बाइबल में लिखा जब ये सारा सिलसिला होने वाला, जब ये सारी बातें होने वाली, अब इस ऐसा है टिकट ली, अब कलाम तो सुना है, अब कलाम को फॉलो नहीं किया, अब कलाम को लाइफ के अंदर नहीं लिया, अब कलाम को सुन लिया है लेकिन उस पर अमल नहीं किया, बल्कि सारी ज्यादती की है, बल्कि दूसरी तरफ जो है निकल जाता। लेकिन खुदा ने इसके वापस से तूफान बर्पा कर दिया। तूफान बाज आपकी फैमिली के अंदर बीमारियां फतहमंदी होती है, अगर आप उसको पिक करें, अगर आप उसको लाइफ के अंदर लें, आपकी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। आपने शाहीन देखे, अकाब देखे कभी? अकाब जब आंधी आती है कभी अकाब नीचे नहीं उठता, कभी अकाब नीचे, जब आंधी आती है अकाब बुलंद होता जाता, अकाब बुलंद होता जाता है। जब बुलंद होता जाता है तो वो ऐसा आंधियों से ऊपर जाता है, ऐसा है या नहीं? लेकिन ये नबी जो था, ये पैगंबर जो था, और ये खुदा का बंदा जो था, और इसने क्या किया? इसे ऐसा है टिकट लेने के बाद सवार हो गया, सवार लेने के बाद जब सो गया, अब सोने के बाद ऐसा है कि छल्ले बड़ी बड़ी आ रही है, तूफान मौसम हो गया। बाइबल कहती है इतना मौसम हो गया, तूफान इनके खिलाफ हो गया। नबी था इसमें, लेकिन तो जो फरमाइएगा जरा क्या लिखा है। लेकिन जब सब लोगों ने अपना सामान उठाया, उठाने के बाद वो औजार उठाए, वो सारी चीजें उठाई, यहाँ तक अनाज भी उठाकर समुद्र से नीचे फेंकना शुरू हो गए, यहाँ तक जिनसे वो ठीक करते थे, और औजार जो थे, पलाश जो था, सन्नी जो थी, और जो कुछ उनका था, वो सब उठाया और सारे औजार नीचे फेंक दिए। लेकिन समुद्र बचाए नीचे आता और वो मोशन होता जाता था, उनके खिलाफ होता जाता। असी कई बार आने हम, कई बार आने असी तो दुआ करने कम सगों तेज होता, ऐसा है ये। कुछ लोग मुझे कहते असी जिन्नी दुआ करिए उन्ना कम तेज होता। मैं क्या होना है, जो तेज होएगा फिर रुकेगा। हालेलुया। जब रुकेगा फिर ये उठेगा नहीं। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है जब ये सारा सिलसिला होने लगा, उन्होंने लिखा है कि कूड़ा डाला और कूड़ा चला
यूना के नाम का निकला। अब ऐसे आके और वो यूना के पास आते, यूना सोया हुआ, यूना क्या हुआ, यूना बिल्कुल सोया हुआ, और यूना का आकर उठता है, हेलो हेलो यूना, हेलो यूना। उससे आकर उठाया, उठाने के बाद उससे कहा आप कुछ भी ना करो, मुझे उठाओ, उठाने के बाद मुझे समुद्र के बीच में फेंक दो। उन्हें कहा नहीं ऐसा नहीं हम कर सकते। लेकिन तो उन्होंने कुरा डाला, तो कुरा फिर यूना के कुरा जी तो ढाडे ना दा निकलदा ना, डिग्गो तो ना परेशान होया करो। हालेलुया। ते जिद्दन ढाडा कुरा निकलना है उदन तुसी छुट्टी करके बैठे होंदे चर्च, उदन समझ गए हैं। उदन मेरे इलाके च भी, मेरे बोरिया च भी, मेरे लाते च भी, मेरे दिल में भी, मेरे फलां भी, मेरे टमकाना, उस वक्त आपका कुरा निकलने वाला होता है। हालेलुया हालेलुया। यूना का कुरा निकला, लेकिन यूना क्या करा, बहाने डाल। यूना ने कहा भाई मुझे और फेंक दो, लेकिन उन्होंने कहा जब आपका कुरा निकलने वाला था आप छुट्टी पे होते, तो जेड़ा छुट्टी दे और नाम फिर किने मिलता, जेड़ा होवे। हालेलुया, जेड़ा उठे। लेकिन बाइबल कहती है उन्हें कहा उठाओ, और जब उठाना ही था, जब ये सारा सिलसिला हुआ, तो कुरा किसके नाम का निकला जनाब वाला, किसके नाम का निकला, किसके नाम का निकला, ऊंची बोलो, किसके नाम का निकला, किसके नाम का निकला, किसके नाम का निकला, किसके नाम का निकला, यूना। हालेलुया, किसके नाम का निकला, यूना। किसके, आप बोलते जाओ, किसके नाम का निकला, किसके नाम का निकला, किसके नाम का निकले, यूना के नाम का निकला, जिसका मतलब था भागता, कबूतरी, उड़ने वाली। लेकिन बाइबल कहती है जब इसके नाम का निकलता है, तो जब ऐसा कुरा तो निकला इसके नाम का, लेकिन ये कुरे को पहले एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। उन्हें पता था मैं खुदा की सुनी में भागा हुआ हूँ और मैंने गुनाह किया है। लेकिन जैसे उसने भागा ना, खुदा ने एक फिश जो थी और वो रखी थी, और जैसे ही इसने ऐसा था कि इसने तारीफ बताती, बाइबल कहती है, और जैसे ही ये मछली वहां तूफान जो है वो ज्यादा होता जाता, जब ज्यादा होता जाता और मछली भी करीब आती जाती है। हालेलुया। पूरा ऐसे नहीं दो बारी निकलिया, आज मछली पीछे सी, अगर ऊंचे सड़ दे दे तो मगरमच्छ फड़ लेना नबी, तो वो कहता वो खा जाता। ऐसा है या नहीं, स्टॉप करना ऐसा है कि तो पहले गुनाह उसने कहा नहीं गुनाह ना डालो, मुझे खाओ और फेंक दो, लेकिन मछली अभी दूर थी, उन्होंने फिर गुनाह डाला, और गुनाह जब देखा तो गुनाह किसका निकला, यूना का। उन्हें कहा अभी बताइएगा तू कौन है, कहां से है, तेरा नाम क्या है, तेरा मजहब क्या है, तेरी कौमियत क्या है, तू किस जात का है, तू किसको मानता है, हमें बताइए। उससे कहा मैं रब्बुल अफ़वाज कादर मुतलिक का मानने वाला हूँ, मैं इब्रानी हूँ, और मैं वो हूँ और जो जिंदा खुदा की वर्शिप करता हूँ। लेकिन ये कहा हमें बताइए ये कुरा तेरे नाम का क्यों निकला। उससे कहा मैंने जाना नैनवा को था, अब जाओ तफ्सीश कर रहा है, अब खुदा का ये बयान है, अब मछली भी करीब आ रही है। अब उन्होंने उठाया और मछली ने अपने मुंह को खोला और जैसी नबी को उठाया और वो सीधा मछली के पेट में जाता है। हालेलुया। अब आज जैसी मछली खाइए ना तो कंडे कड्डी दे, हाँ जी की करी ने लैदा करते, बस तुम सिर्फ वाकई नहीं खाते, वाकई नहीं खाता, इसको तो मैं छेड़ने के लिए कहता हूँ ये लो फिश, ये क्या कहते ऐसे करते। लेकिन सुनिएगा आज जो लोग खाते और वैसा है, उनके जो कंडे होते वो कहाँ करते हैं, कई ये हो जाए एक साइड तो ला लेते और एक बारी काट दे हो गए। हालेलुया। लेकिन इसको एक कांटा भी नहीं लगा, एक जैसी नबी को फेंका और फेंकने के बाद उसको कांटा नहीं लगा, और कांटा इसलिए नहीं लगा, और ये मछली डॉल्फिन जो है ये तारीफ बताती है, ये इन टाइम एक टाइम के अंदर 3 बंदों को अपने अंदर समा सकती है। कितने को? 3 बंदों, कितने को? 3 को अपने अंदर समा सकती। कितने 3 को इन टाइम इसके अंदर एक रेस्ट हाउस बना है। ये इतनी ताकतवर है, अगर जहाज के साथ अपना कंधा लगाए जहाज की ऐसा है
जरूरत नहीं है आगे जो है वो चल सके। ये इतनी भारी मछली थी और इसके अंदर एक ऐसा खुदा ने रेस्ट हाउस बनाया हुआ था, और वो जो था, अगर आप फिश लेने के लिए जाते हैं तो आपको एक, जब वो फिश कभी वो बना रहा होता हो तो आपको देखे उसके अंदर से गबारा सा निकलता है, और उसके अंदर वो भी था, और वहां कोई चौथा वो कांटा नहीं था। लेकिन ये मछली जो डॉल्फिन है, ये एक घंटे में 150 किलोमीटर का सफर करती है, यानी एक घंटे के अंदर ये 150 किलोमीटर का सफर करती है। लेकिन बताना चाहता हूं, और अगर जब ये 150 किलोमीटर का सफर करती है तो इसके अंदर कौन है? इसके अंदर कौन है? यूना बोला तो करो, इसके अंदर कौन है? हाजी रफिया, इसके अंदर मछली के पेट के अंदर कौन है? तो यूना के पेट के अंदर कौन है? खुदा का कलाम। मछली के पेट के अंदर यूना है, अब यूना के अंदर खुदा का। तो मेरी दीदी स्पीड वधी होनी है कटी होनी है? बोलो सही। इसकी स्पीड और ज्यादा हुई होगी। लेकिन सुनिएगा, लेकिन नबी जो था ये 72 घंटे रहा, 3 दिन और 3 रात ये मछली के पेट के अंदर। सब तवज्जो फरमाइए, ना इसको भूख लगी, ना इसको प्यास लगी, ना इसको कोई ऐसा है कांटा लगा। क्यों? क्योंकि ये खुदा की प्राइजेस में आ गया था, क्योंकि खुदा की हजूरी में आ गया था, क्योंकि इसने मान लिया था। जब आप मान लेते हैं, जब आप रोजे में हो जाते हैं, जब दुआ में हो जाते हैं, और जब आप अभी पंजाबी चक मसाले सुबह का भुलिया शाम नु घर आ जाए, उन्हें भुलिया, बोलो तो सही, उन्हें भुलिया नहीं आंदे। उसको भूला हुआ नहीं कहते, उसको कहते सैर सुर कर गया सी, जूस पीन गया सी, शवारमा खान गया सी, फला चीज लेने गया सी, फला चीज कहते नहीं ये भूला नहीं था, बल्कि ये तो सैर करने के लिए गया था। लेकिन ऐसा तो इसके पेट के अंदर कौन है? यूना के पेट के अंदर खुदा का कलाम है। अच्छा, कलाम इसकी स्पीड तो बड़ी होगी, ये स्पीड के साथ जाती होगी नैनमा की जानब। अब खुदा ने कहा अब फिश को देखो, और मैं कहता हूं अगर आप काम नहीं करेंगे, बहुत से लोग कहते हम काम नहीं करेंगे, मैंने कहा नहीं करना, ना करो, काम नहीं रुकता। हालेलुया, काम नहीं खुदा का रुकता। अगर आप नहीं बचाएंगे, आप बचा लेंगे। कोई खुदा के काम कभी रुका है? कि न रुका है, न रुकेगा, न रुक सकता है। लेकिन जो फरमाइए, खुदा का कलाम क्या कहता है? और जब ये अगर आप काम नहीं करेंगे, खुदा गद्दियों से काम करवाएगा। पता है जब खुदा ने जबान दी थी, बलाम बैठा हुआ था, कभी बोली अगर आप नहीं काम करेंगे। आपको याद है एलिया को रोटी कौन देता था? और कवे। आपको याद है उनका पानी कौन देता था? कवे। याद है आपको गोश्त उनको कौन देता था? कवे। कहो, बोलो, तुसी नहीं काम करोगे, कोई गल नहीं, काम खुदा जानवरों को कराएगा, परिंदियों को कराएगा। ये कभी भी अपनी लाइफ के अंदर ना ले, बल्कि ये कहे मैं करूंगा काम। हाथ रख क्या, मैं करूंगा, बोलो ऊंची बोलो, मैं करूंगा काम, बोलो मैं करूंगा काम। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है, खुदा ने किससे काम करा? मछली से। खुदा ने मछली से कहा मेरा नबी आ रहा है, अब इसे अपने ले, और दांत नहीं लगाना, कांटा नहीं लगाना, इन्हें नैनवा के अंदर जाकर रखना है, वहां मेरे शहर को बचाना है। वहां मेरी तालियां काटी जा रही है, वहां मेरे शहर को बचाना है। इसको चबाना, इसको कांटा, इसको दांत, इसको कोई चीज भी आपने इसके साथ नहीं करनी। इसको सेम आपने अपने पेट के अंदर। मछली ने कहा 100 बिस्मिल्लाह, कहा होगा ना? हाँ जी, तुझे अपने बंधन कर जाके पहला पानी 100 बिस्मिल्लाह, क्या होगा? मछली कहा 100 बिस्मिल्लाह। मैं एक तो क्या तेरे नबियों 3 को रखूं अपने पेट के अंदर, मुझसे बड़ी बेहतर फिश कौन सी हो सकती है? मैं नबी को पेट के अंदर रखूं, और नबी के अंदर खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम है। और पिछले और थोड़ी लगाई होगी, तो अब इसका सफर एक घंटे के अंदर 150 किलोमीटर। जब नबी इसका पेट के अंदर होगा, मैं लाएंगे तो स्कूल नहीं आया इनू किसने देखो दर्द होए, खुदा ना करे किसी दे पेट च होए, तो दौड़ा वेख्यो है ऐसा था, आए मर गई। मुझे आपको पता है जब 1 बजे हमें उठा के लेकर गए थे, वो उस फैमिली का नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा था उस बंदे की ना वेन पे वेन हो गई, वेन पे ऐसे
वो समझते भद्रू है। उन्होंने 1 बजे में, बारिश भी बड़ी हुई थी, मैं और एल्डर साहब गए, तो मैंने कहा, मैंने ना उसके पेट के ऊपर हाथ रख दिया ऐसे, मैंने कहा खुदावन वो टाटा तो बड़ा पेट आती है ऐसा है। मैंने जब हैंड रखा, मैंने कहा चितनी वेन है, क्लियर इन द नेम ऑफ जीसस। 5 मिनट के बाद, लेकिन पहले उससे ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ जाता। मैं बताता हूँ, नबी जब इसके अंदर था, नबी जब इसके अंदर था, जब कलाम जो था इससे कुछ नहीं किया, ऐसा है या नहीं? इसकी स्पीड बढ़ गई। और जब आप चर्च में जब आते, कभी लेट ना किया करें, स्पीड बढ़ाया करें, स्पीड पीछे मुड़ के ना क्या करो। पीछे मुड़ने का मतलब यह है अपने कामों को याद ना रखे, अपनी फैमिली को जो है वो चर्च में याद रखे, अब अपने किसी ऐसे कामों को याद ना रखे। और मछली तो स्पीड मारी, और स्पीड मारने के बाद जब जाती है, अब ऐसा था वहां जो समुद्र था जो था, और उसके किनारा जो था वो समुद्र बीच से और बिल्कुल पास से गुजरता था। और नबी ने अपने मुंह को खोला और नबी ने चप्पल लगा कर ऐसे खड़ा हुआ, जाकर कहता तौबा कर, तौबा कर। नबी ऐसे निकला होगा, नबी मरे ओए 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 नहीं जी, मैं कितने बुलाती करूं, कंडा लगा जी। नबी ने चप मार के बाहर निकला और जाकर क्या कहता, भागता जाता, लिखा 36 घंटे का सफर था। कितने घंटे का? आज ते तानू घंटा बिठाई मुड़ के दवा बड़ी लंबी करदा है। जिद्दी दवा लंबी होएगी उन्नियां मुसीबतां घट होंदियां, गल बल्ले बन लो। जिन्नी दवा छोटी होगी उन्नियां मुसीबतां बड़े बड़े खा दो। अब देखो अनवर फजल होना है तो लोग तरस दिन हाथ चुमन, ओनू पूछो भला किन्ने घंटे दवा? 18 घंटे दवा करदा जो। किन्ने घंटे है? 18 घंटे। आपा किन्नी करनी? आप भी विच बस चलन दे ऑनलाइन में मुंह नहीं अपना वो वेची बासी वाले। ओ इनको डांटो। नबी जो था ये चक मार के खड़ा रहा और खड़ा करके कहता तौबा करो, और भागता जाता है। और लिखा 36 घंटे की रात हुई, नबी भागता जाता। इसे 3 दिन के अंदर ये मुकम्मल किया, और मुकम्मल करने भागता जाता, कहता तौबा करो, नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। और जब ये पहुंचता है, और जब ये खबर किस तक पहुंची? नैनवा के बादशाह तक। और बादशाह ने जब सुना अब पैगाम आ गया है, और इसलिए नैनवा के लोग जो थे ये मछली के देवता की प्रस्तुत करते थे। अगर ये वैसे नबी जाता उन्होंने मार देना था। उन्होंने मछली के पेट से, इसलिए तो खुदा ने भेजा था, कहा कि ये समझेंगे कलाम मेरा होगा, कलाम मेरा होगा, तो अब बंदा इनका होगा। कलाम समझे कि बंदा इनका। मछली के पेट से जब सब लोग, अक्सर लोग तो आप ऐसा है कराची का तो जाए, हजारों लोग आपको दिन और रात नहाते हुए समुद्र में मिलेंगे। मैं जब कराची में गया, मैंने कहा यार मैं समुद्र देखना चाहता हूँ। मुझे बोले कि चलने आई, मैं डर गया, क्या बैठ जाओ, वो छत ऊपर से ही, लेकिन वो कुछ नहीं की, लेकिन छत जब वापिस जाती फिर आपको खींच कर लेकर जाती है। लेकिन मैंने जब सारी बातें सिचुएशन देखी तो जो सत्वंजा फरमाइए, और जैसी और वो पास से गुजरता था, लेकिन जैसी वो गुजरता था, और ऐसा है कि मछली भी वहां ऐसा है कि जो उसे बाहर निकाला, लोग वहां नहा रहे थे, तारीख बता दिया, लोग वहां बैठेंगे, उन्होंने कहा लगता हमारे देवता में से कोई आया है। हमारे कलाम खुदा कहता मेरा होगा, बंदा इनका होगा। और जब ये सारा अगर नबी वैसे जाता और जाकर कहना था तौबा करो, आज तुझे किस रखो पुत्र तौबा करो, बपतिस्मा ला लो, उन्हें है बड़ा पाक साहब मैं तौबा नहीं की है। अपने हस्बैंड ने जाके आके इंजे बपतिस्मा लो ना, तू पा दी को नवी गल सीख असली बपतिस्मा, असली तौबा। बाइबल में क्या लिखा है? हालेलुया। बाइबल में लिखा, बाइबल बताती है, और बाइबल में लिखा जब ये वहां पहुंचता है तो सब लोगों ने देखा, कहा ये मछली के पेट से निकला है, हमारे देवता ने बेचा है। और जब ये पैगाम उसने दिया तो सब लोगों ने बाइबल लिखा, और बादशाह ने ऐलान किया तौबा करो, और रोशनी की मुनादी करवाई, और सबने ताट उड़ा और रात भर बैठ गए। अब यही बैठकर अब देखना शुरू हो गया, कहता 40 दिन के बाद तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है अगर आप तौबा करते हो, तो अगर आप रोशनी में आते हो, अगर दुआ में आते हो, खुदा अपने प्लान को चेंज करता है। हालेलुया। खुदा यही चाहता कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा ये कभी नहीं चाहता तुम हलाक हो।
खुदा ये चाहता हर एक की तौबा तक नौबत पहुंची। तो अब तौबा करो। जब वो रोजे में ठहरे, जब दुआ में गए, तो बाइबल में लिखा अब यही यूना बैठ गया, और बैठने के बाद कहता है मैं देखता हूं कि ननवा कैसे तबाह, जरा मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। लिखा है 40 रोज के बाद ननवा बर्बाद किया जाएगा। तब ननवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान ला, कहते थे मान लाए, कहते थे सारे हाथों क्या खोल, सब दोवें हाथों क्या को कहते ड्रामिया दे, चुगलियां दे, केना दे, खुदा पर ईमान लाकर। लिखा है रोजा की मुनादी, रोजा रखने से पहले तो मैं नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। लेकिन नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, इसलिए तुसी चंगा सूट पा के आओ, चंगा सूट तो गंदा जा दुपट्टा ला के आओ, सलवार चंगी पाओ, कमीज गंदी, अब बेवकूफ लोग कहेंगे है। सूट अच्छा पहना हो, दुपट्टा फटिया ले आए, आप उतर जारी फटिया ले आए, अद्धा चूहिया ने टुकिया है, सहेलियां ने नहीं जान छड़ी है, नहीं तू छुट्टी से है, नहीं तेन हो की गया, तू बेवकूफ तो नहीं होगी, ऐ दुपट्टा दे ऐसा होगा ना। नहीं मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, इसलिए कबो फट जाती है। अगर नई मैं नहीं है, जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। अगर रोहल को सुनाया है या पुराना है तो जिंदगी हो ही रही, तो गलत नहीं ना बनी। नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, इन्होंने अपनी पुरानी मशकें निकाली और बादशाह ने ऐलान किया तौबा करो। और आगे क्या लिखा है सुनिएगा। तब ननवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुरादी की। अदनवाला सब ने टाट उड़ा और यह खबर ननवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और पाशी लिबास को टाट डाला और टाट उठकर राख पर। हालेलुया। ये है रोजा। खुद तुम्हारा रोजा, तुम्हारी दुआ खुदा के प्लान को चेंज कर दे, वो प्लान की तौबा तक नौबत पहुंचे। हालेलुया। बीमारियों को कहो जानी यीशु दा लहू आ गया, ये रोजा होना चाहिए आपका। आगे क्या लिखा है बाइबल क्या कहती है, एक इंसान हैवान ताश मुलब्बस हो, खुदा के हुजूर गिरफ्तारी करे, बल्कि हर शख्स ने अपनी बुरी रवश, अपने हाथ के जुल्म से बाज है। जब खुदा ने उनकी हालत देखी कि वह अपनी अपनी बुरी रवश से बाज है, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को था बाज आया और नाजिल ना, और सारा शहर बच गया। जोरदार तालियां खुदा की, जोरदार फुल शोर जे मार दो। वो सारा शहर, खुदा यही चाहता है तुम बच जाओ। पौलुस कहता है मेरा मरना भी मसीह, मेरा जीना भी मसीह, मेरा उठना भी मसीह, मेरा सोना। कई तो नींद भी नहीं ना होती रात, वो एवं अबलीस के बड़े 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 ऐसे उसके, वो आपको प्रेयर में नहीं आने देगा, आपको दुआ में नहीं चुकने देगा, आपको रोजे में नहीं ठहरने देगा। लेकिन बाइबल कहती है जब आप रोजे में होंगे, जब आप पुरानी जो मशक है, नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरती, इसलिए कि वो फिर दिल नया है, सोच नई, ख्याल नया, सोच नई, ख्वाब नया, रोजा नया, सब कुछ नया। आपको नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, तब आपके रोजे भी कबूल है, तो आपकी लाइफ में हर एक चीज पॉसिबल होगी। हालेलुया। कोई चीज ऐसी नहीं जो पॉसिबल ना होगी, जिसके बारे में बाइबल कहती है। और बाइबल में लिखा है और तुम ऐसा रोजा नहीं रखते, तुम्हारी आवाज साल में पाला पर सराई दे, ऐसा तुम रोजा रखो। निनवे के लोगों ने ऐसा रोजा रखा। खुदा ने कहा अब यूना जो था ये बैठ गया, कहता मैं देखता हूं कैसे ये सड़ते मरते हैं, लेकिन इनका इरादा जो था खुदा का चेंज हो गया। और रोजे में बुराइयों से बचे, बदकारियों से बचे, वकारियों से बचे, तौबा में आ गए, रोजा रखा। और फिर जब रोजा रखा तो रोजा आसमान पर पहुंचा। क्या हुआ? साढ़े घर ही नहीं पहुंचता, साढ़े नाल नहीं रोजा रखे। हाँ, रोजे का मतलब है तुम्हारी पूरी फैमिली चेंज हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए बाइबल मुकद्दस में एक आयत पढ़ते हैं, ज़बूर की किताब, ज़बूर देखिए 32 लास्ट आयत, ज़बूर 32 5वीं आयत। और मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाहों को मान लिया। दिल दी थात्रा क्या को सारे रखो, जिन्हें नहीं रखन दे फिर किसी और रखन दे।
میں نے تیرے حضور سجا رکھو کھبے والی نہ کو دوڑ لگدا باجی دا کیا سجا رکھ یا کھبا تیرا پا دے نے بھی دال آؤں نہیں مڑ دے کھبا رکھ دے سجا میں نے سب بولو سب میں نیچے ہونے کا سب بولو سجا ترا کیا بھاری رکھ دے بھائی بین باسی رکھ دے میں نے ہاں سجا میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اچھی بولو میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی ہاتھ نہیں تھلے ہونے چاہیے اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا اچھی بولو نوجوانوں میں ٹاڈے لاؤنا پہ اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا میں نے کہا میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا ہے میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا ہے یہ نینوا کے لوگوں نے کیا تھا انہوں نے مانا پر خدا نے کہا آپ نے ہمیں مانا ہم نے ہوتی جینو جی بند کرنا یہ ادا چینج کرتا ہوں خدا نے کہا نہیں ہوتی جینو شہر بچ گیا ہے زوردار تالیاں خدا کے سلام رام رام سبق کو بڑی بند کریں آئیے ہم